So transitional provisions basically come into picture just to uh, get over with the old tax regime. So before GST, as you are aware, so there was VAT, there was CST, there was excise duty, there was service tax. So all these were replaced by GST. So here we have to create provisions with reference to three main aspects. One is carry forward of the credit. So main part is whatever credit was available in earlier regime, like VAT or service tax. So how that credit can be carried forward. So there has to be certain rules and regulations with reference to that. Hmm. Secondly, continuance of existing procedures such as job work for a reasonable period of time without any adverse consequences. So there are provisions in job work, like once I'm sending the goods to the job worker, within 1 year it has to be returned back, huh? And in case of capital goods there is a time span of 3 years. Likewise, there were provisions with reference to service tax, VAT also. So how that overall activity would be considered, or whatever is the benefit which was given to them, like एक साल के अंदर अंदर वापस गुड्स को लेके आना है, या फिर 3 साल के अंदर कैपिटल गुड्स को लेके आना है, तो वो प्रोविजन सर्विस वैट में था, तो वैट का जीएसटी में कैसे कंटिन्यूएशन करना है वो. एंड थर्ड पार्ट, ऑल क्लेम्स pertaining to existing law, that is before the appointed day, that is 1/7/2017. हाँ. अभी ये पूरे चैप्टर में जब भी हम लोग एग्जिस्टिंग लॉ पढ़ेंगे तो अभी कैसे होता है अपने माइंड में एग्जिस्टिंग लॉ मीन्स जीएसटी है, करेक्ट. लेकिन फॉर दिस चैप्टर व्हाट दे आर रेफरिंग टू अस, जब भी ये प्रोविजन बनाया गया तभी एग्जिस्टिंग लॉ था वैट या सर्विस टैक्स. तो whenever we are reading the text or whenever we are considering the provision, remember existing law here means the old tax law, huh? And which is replaced by GST. So they will specifically mention that what is the new provision. So that would be mentioned separately. But here you will have to consider the existing law as the old tax law. All right. हाँ. अभी luckily यहाँ पे उन्होंने चार्ट में certain things they have explained. So ये चार्ट को सब चार्ट को हाईलाइट कर लो. ये all right. So first of all, relating to ITC. So the provisions were made for carrying forward of the ITC under the existing law. Uh, However, the taxable person opting for composition scheme would not be eligible to carry forward the existing ITC. Now, you know that when the transition provisions took place, the SSC was given an option that whether you want to be a regular taxable person or whether you want to be a composition scheme dealer. तो अगर कोई भी पर्सन ने एज अ कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर रजिस्ट्रेशन ले लिया, नेचुरली उसका बेनिफिट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा. हाँ. लेकिन जो लोग कंटिन्यू करेंगे एज ए रेगुलर टैक्सेबल पर्सन, दीज एंटिटीज आर एलिजिबल फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो आपको पहले देखना है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, whether that is getting registration under section 10, that is under composition scheme. तो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन है तो आपका आईटीसी टोटली चला जाएगा. If the answer to that question is no, that means you are getting registered as a regular taxable person, then obviously ITC is admitted or not admitted in GST. That's what you have to consider. So it is very crucial point that it may happen that in old regime the credit was available for particular goods, but in new regime the credit is uh, uh, credit is not allowed. So if ITC is not allowed, basically आपको benefit उसका नहीं मिलेगा. लेकिन अगर ITC अवेलेबल है तो हमें नेक्स्ट पॉइंट चेक करना है, रिटर्न्स फर्निश्ड for 6 months prior to, that is not 69, that is prior to 6 months up to 1/7/2017, means last 6 months का रिटर्न्स आपको प्रॉपरली फाइल कर देना है. एंड इफ यू फाइल दोज रिटर्न्स, then you are eligible for taking the input tax credit. So finished goods cleared under the exemption. Yes. Lastly, finished goods covered under the exemption notification. मतलब एक होता है आईटीसी अलाउड है या नहीं है, दूसरा
मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसमें अ, मतलब वो टैक्सेबल है या नहीं। सो हमने रूल देखा है कि अगर मेरा प्रोडक्ट टैक्सेबल नहीं है तो नेचुरली मेरा आईटीसी का बेनिफिट डिनाय हो जाएगा। So you have to check whether I am supplying goods which are exempted or taxable. So if they are exempted from taxes, then naturally आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, एंड अगर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में नहीं आता तो ऑब्वियसली हम लोग उसका बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे। ऑलराइट, तो आपको देखना है इन सिंपल वर्ड्स आईटीसी कभी मिलेगा आपको। One thing is you should be a you should not get registration under composition, but you should be a regular taxable person. Secondly, ITC should be admissible in GST. Thirdly, you have filed the returns under old regime. Fourth most important point is your product is not getting covered under the finished goods list. तो अगर ये सब कंडीशन फुलफिल हो गया तो आपको आईटीसी मिलेगा। अभी दिस आईटीसी इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 141। ऑलराइट, फर्स्ट क्लियर है सेक्शन। यस सर। अभी इसमें सेकंड पार्ट आता है रिगार्डिंग कैपिटल गुड्स। Now, for capital goods, what is important is again the same point. Whether you are a registered person under composition or regular taxable person. So, if you are getting registration under composition scheme, then obviously आपका credit cancel हो जाएगा. Secondly, SINVAT credit is allowed or not allowed. If it is allowed, then registered person is entitled to take the credit. But only thing is here you have to follow one condition that a registered person shall be entitled to take in his electronic credit ledger the amount of credit unavailed under SINVAT credit carried forward in returns as per section 30 as on 36 2017। अभी ये जो प्रोविजन है अर्लियर टैक्स रिजिम में कैसे होता था, आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट देते थे, मतलब लमसम नहीं, जैसे अभी हम लोग कैपिटल गुड्स में पूरा का पूरा क्रेडिट ले लेते तो तभी वहां पे प्रोपोर्शनेट क्रेडिट था फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स इट वाज सर्टेन capital assets it was in proportion like half अभी half next year में। तो accordingly you are required to take the input tax credit here। एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बिकॉज नेचुरली यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर ओल्ड टैक्स प्रोविजन। सो ये सिर्फ इतना याद रखो कि जितना भी बैलेंस था उतना हम लोग क्या करेंगे, उस क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके ये दोनों को आपने मार्क करके रख दिया। अभी इसको हाईलाइट करके रखो, मार्क करके रखो इसको। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट इन द लास्ट रिटर्न्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, फिर कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो उसके लिए आपको कंसिडर करना है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट सेन वैट क्रेडिट, दैट इज जो एक्साइज एंड सर्विस टैक्स में था, एंड वैट का क्रेडिट in the last return files under the existing law can be taken as credit in electronic credit ledger, and such credit is available only when the returns for previous 6 months has been filed under the existing law। Hmm? Existing law means purana wala। In order to claim this credit, declaration in form GST Tran 1 इसको underline करके रखो। सी आइडियली इसके ऊपर अभी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आना चाहिए, बट इन रीसेंट एग्जाम दे हैव आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चन, सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ट्रैन 1 is required to furnish on common portal, इसको अंडरलाइन करके रखो, विद इन 90 days फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। अभी 90 डेज मतलब 1 जुलाई से, सो 1 जुलाई से आपको 90 डेज काउंट करना है, उतने टाइम में आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल ट्रैन 1 फाइल कर देना है, सो दैट आपका क्रेडिट क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
ओके, अभी क्रेडिट किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होगा? अभी किस तरीके से मतलब, ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत सारे अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स थे, न्यू टैक्स रेजिम में नॉमेनक्लेचर क्या हो गए, कम हो गए। तो क्रेडिट एज क्या करके कैरी फॉरवर्ड होगा? बिकॉज इसमें वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, लेकिन यहाँ पे आइदर सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, इसमें से एक कंपोनेंट आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे एज सेंट्रल एक्साइज एंड एनसीसीडी है वो, एज सीजीएसटी करके कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी है जो कस्टम्स में आता था, वो सीजीएसटी करके कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पेशल सीवीडी है वो भी सीजीएसटी करके कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड वैट जो स्टेट बेस्ड था इसके लिए, वो एज एसजीएसटी करके कैरी फॉरवर्ड हो जाए। ऑलराइट, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि कौन सा क्रेडिट एज क्या करके कैरी फॉरवर्ड हो जाए। हाँ, तो सिंपल याद रखो, जो सेंट्रल लेवल पे टैक्सेस है या ऑल ओवर इंडिया टैक्सेस है उसके लिए सी है, एंड बाकी के लिए एस है। जैसे स्टेट बेस्ड टैक्स मतलब वैट, तो उसके लिए एसजीएसटी में आ गया। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट provision is credit on duty paid stock. अभी a registered taxable person other than manufacturer or service provider may have duty paid goods in his stock on the appointed day. GST would be payable on all supplies of goods and services made after the appointed day. It is not the intention of the government to collect twice. That means आपके पास सपोज मैंने किसी को गुड्स बेच दिया, हाँ, एंड वैट लगाया उसके ऊपर, एंड जो मेरे पास ही स्टॉक में, हाँ, एंड बाद में मैं उसको एक्चुअल डिलीवरी उस गुड्स का बाद में कर रहा हूँ। तो वहां पे अगर आप बाद में गुड्स डिलीवर कर रहे हो तो दैट डजंट मीन आपको वापस जीएसटी भरना पड़ेगा। सो देयर इज नो इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू पे डबल टैक्स। तो डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आइदर ओल्ड रेजिम में या फिर न्यू रेजिम में आपको टैक्सेस पे करना है। ओके, नेक्स्ट इज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे हो सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन हु वाज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ and who was engaged in manufacture of exempted goods or services or was providing works contract service and availing benefit। मतलब तभी ऐसे था कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है तो आपको टैक्सेस की जरूरत नहीं थी। और अ फर्स्ट स्टेट डीलर ऑफ सेकेंड स्टेज डीलर और रजिस्टर्ड इंपोर्टर ऑफ डेपो ऑफ मैन्युफैक्चर। तो ये केस में आप आउटपुट पे टैक्सेस नहीं लगा रहे थे, इसके लिए आपका आईटीसी कैंसल आउट हो रहा है। तो वो कैंसल आउट ना हो इसके लिए जीएसटी में उन्होंने प्रोविजन लाया। हियर द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट फॉर वॉट एवर इनपुट्स आर देयर एज ऑन द अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे मतलब 1 जुलाई को आपके पास जो भी गुड्स है या फिर जो भी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, उसके रिलेटेड आपका जो भी आपने टैक्सेस पे किया है उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशन देखना पड़ेगा, एंड वो कंडीशन क्या है? Such registered person is in possession of invoices evidencing payment of duty under the existing law। हाँ, तो उसके पास उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दैट इज द वेरी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसका नेचुरली इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट चला जाएगा। तो ये पॉइंट कॉमन आता है हमेशा, whether you have supporting documents or you don't have supporting documents। Secondly, such invoices were issued not earlier than 12 months इमीडिएटली प्रिसीडिंग 1 जुलाई। हाँ, मतलब 1 जुलाई 17 के एक साल पहले, मतलब 1 जुलाई 16 या उससे आगे अगर इनवॉइस है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, उसके पहले के इनवॉइसेस को हम लोग बेनिफिट नहीं देंगे।
Lastly, the supplier of services is not eligible for any abatement under this act. तो यहाँ पे जैसे सर्विस टैक्स में अबेटमेंट का एक कंसेप्ट था जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था, वो जीएसटी में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अब ये सेग्रीगेशन है, इसको मार्क करके रखो। जैसे हमने वहां पे थोड़े पॉइंट्स देखे, यहाँ पे बाकी सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सीवीडी, एसएडी, एनसीसीडी, स्टेट वैट, एंट्री टैक्स, सीएसटी। अभी इनके लिए ही क्रेडिट है, इनका क्रेडिट ही कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आप एक ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे सीवीडी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, बट बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं है, या फिर एजुकेशन सेस नहीं है, या फिर स्वच्छ भारत सेस नहीं है। हाँ, लेकिन सीवीडी या स्पेशल सीवीडी है। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको बीसीडी भी देंगे, सीवीडी भी देंगे। तो आपको याद रखना है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी है, सेस है, एजुकेशन सेस है, हायर एजुकेशन सेस है, या फिर कृषि कल्याण सेस है, या फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, उनका आपको क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं करने को मिलेगा, बिकॉज बेसिकली उसका आईटीसी मिलता ही नहीं था पहले से। एंड सीवीडी एसएडी का क्यों दिया? बिकॉज आपको पता है कि दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। तो इसके लिए उन्होंने क्रेडिट जो पहले पे किया था अपने ड्यूटी, उसका क्रेडिट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, ये मार्क कर दिया आप लोगों ने? यस सर। हम्म, हाँ ठीक है। सर। हम्म, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है सी, इसको पूरा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, आपने चार्ट भी देखा तो भी that is sufficient, and you can remember the provisions with reference to that. अब ये क्रेडिट, ये प्रोविजन किसके लिए वो हम लोग पहले देखते हैं। क्रेडिट ऑन ड्यूटी पेड स्टॉक when registered person does not possess document evidencing payment of the excise duty or VAT। हाँ, ये पॉइंट याद रखो। अभी ऊपर मेन कंडीशन क्या था कि द पर्सन possess द डॉक्यूमेंट्स। हाँ, मतलब मेरे पास जो भी मैं क्लेम कर रहा हूँ उसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होना चाहिए। हाँ, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया रहेगा, जब भी आप रिफंड क्लेम करते हो तो रिफंड क्लेम करने के टाइम हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि मेरे पास जो भी सपोर्टिंग्स हैं, वो सपोर्टिंग में प्रॉपर वो टैक्स इनवॉइसेस है कि नहीं है, मेरा नाम लिखा है कि नहीं है, जीएसटी सेपरेटली दिखा है कि नहीं दिखा है। तो हम लोग ये सब एस्पेक्ट्स कंसिडर करके फिर क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। हाँ, तो ये रिटर्न फाइल करने के टाइम आपको कंसिडर करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करने के टाइम आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास इनवॉइसेस नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कितने एक्सटेंड तक हम लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो लेट्स चेक द प्रोविजन। नाउ क्रेडिट्स ऑन इनपुट्स WIP, work in progress finished goods, under section 140 subsection 3। Now first of all, check whether the registered person is a manufacturer or supplier of service. No? Yes, then obviously duty paid document is available या not available, वो आपको चेक करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर या सप्लायर ऑफ सर्विस हो अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, हाँ, मतलब एग्जिस्टिंग लॉ मतलब वैट में या सर्विस टैक्स में आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, वो आपको चेक करना। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कंपल्सरीली आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना ही चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मिस्टर सुरेश इज रजिस्टर्ड अंडर वैट। अभी वैट में वो रजिस्टर्ड था and उसको वैट का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करना है। अभी आप लॉजिकली सोचो, वैट में अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, इज ही मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनपुट्स? उसको कंपल्सरीली डॉक्यूमेंट्स रखना है क्या? यस और नो? आई रिपीट माई क्वेश्चन। अगर कोई भी एसएससी है जो वैट में रजिस्टर्ड है, एंड बिकॉज ही इज रजिस्टर्ड इन वैट, ही wants टू क्लेम सर्टन गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी। हाँ, तो पहले मुझे बताओ, वो वैट में रजिस्टर्ड था तो उसको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी था या नहीं था? यस। हाँ सर। यस। हाँ, कंपल्सरी आपको रखना ही पड़ेगा। अभी
आप कौन सा भी टैक्स स्ट्रक्चर रहने दो, वो जीएसटी रहे या वैट रहे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपको कौन बेनिफिट देगा? तो नेचुरली कंपल्सिव अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, हाँ, एंड आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आईटीसी सीधा क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, नो, देन आईटीसी इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 3, मींस ये केस में आपका आईटीसी क्या होगा, कंप्लीटली कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो ही आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 3। ये एस्पेक्ट क्लियर हुआ? तो दैट मीन्स अगर आप ओल्ड रेजिम में रजिस्टर्ड हो तो सिर्फ चेक करो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, तो आईटीसी मिलेगा, नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन इज अ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ऑफ सर्विस, नो, हाँ, तो उस केस में आपको चेक करना है ड्यूटी और टैक्स पेड डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल और नॉट। आप मैन्युफैक्चरर या सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं हो, हाँ, तो उस केस में आपको देखना है कि आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर, आई एम नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर, एंड मेरे पास ड्यूटी पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, अभी है, तो नेचुरली मुझे पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, उस केस में क्या होगा, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। यस, सो हम विल यू रीड दिस डीम्ड क्रेडिट? Yes, sir. Deemed credit. ITC shall be allowed 60% on such goods which attract central tax 9% or more as per Rule 1, Sub-Rule 3A2 of the Transitional Provision Rules 2017, and 40% of other goods of GST paid on stock cleared after the appointed date. ITC shall be allowed 30% on such goods which attract integrated tax 18% or more, and 20% for the other goods of the GST paid on the stock cleared after the appointed date. मतलब यहाँ पे आपको दो चीज देखना है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेडर हो तो ही आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो आपको दूसरा वाला प्रोविजन एप्लीकेबल, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे उन्होंने ट्रेडर को बेनिफिट दिया है, बिकॉज ट्रेडर, व्हाट ट्रेडर डज, परचेसेस एंड सेल्स। तो परचेस सेल में मैंने परचेस सेल किया लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो भी उन्होंने क्या बोला, आईटीसी शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 60% on such goods which attract the central tax at 9%। 9% एंड अबव मतलब सीजीएसटी 9% या उससे ऊपर रहेगा। मतलब मान लो सीजीएसटी 9% है, 14% है, तो आपको कितने कितने एक्सटेंट तक क्रेडिट मिलेगा, 60%। लेकिन अगर आपका सीजीएसटी रेट 5% या 3% या 1% है, तो आपको कितना आईटीसी मिलेगा, सिर्फ कितने एक्सटेंट तक मिलेगा, सिर्फ 40% तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका मिल जाएगा। ऑलराइट, अभी ये 60 एंड 40 का मतलब, एंड आगे जो दिया है 30 एंड 20, वो 30 एंड 20 अलग नहीं है। अगर बाइफिकेट करना है हमें, हाँ, कितना कितना क्रेडिट मिलेगा ओवरऑल, तो इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी रहेगा, तो आईजीएसटी के केस में देखना है 18% या उससे ऊपर है तो 30% का क्रेडिट मिलेगा, एंड 20 बैलेंस केसेस में मतलब आपका आईजीएसटी का रेट 18 से कम है तो आपको सिर्फ कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, 20%। तो आपको देखना है सीजीएसटी रहेगा तो 60% मिलेगा 9% एंड अबाउ के लिए, उसके नीचे रहेगा तो 40%, एंड उसी का हाफ आपको ट्रीट करना है आईजीएसटी में। आईजीएसटी में 18% या उससे ज्यादा रहेगा तो 30% मिलेगा, उससे कम रहेगा तो 20% इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, hopefully this provision is clear. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, so let's take a question on this. सर हाफ ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड असतील तरी पण आयटीसी नाही मिळणार का?
मॅन्युफॅक्चरर सप्लायरला. म्हणजे तिकडे लिहिले की मॅन्युफॅक्चरर सप्लायर असेल, बुक्स मेंटेन नसतील केले तर आयटीसी नाहीच मिळणार. हा बरोबर. बट तसं इरेग्युलर वगैरे असतील थोडेफार, नॉट प्रॉपरली, बट सम ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तर जसं हाफ वगैरे आयटीसी किंवा गुड क्वेश्चन. फुल्ली डिनायच होणार. गुड क्वेश्चन. ना सी ड्यूटी पेड डॉक्युमेंट इज अवेलेबल, हा क्वेश्चन है बरोबर. सो इफ ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, आईटीसी मिलेगा. ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल, आईटीसी नहीं मिलेगा. दैट मीन्स इन योर केस लाइक यू आर सेइंग कि चलो 70% डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है. हाँ, तो जिस जिसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसका आईटीसी मिलेगा, जिसका डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है उसका आईटीसी कैंसिल आउट. अच्छा, ओके सर. समझा. तो आपको वहां पे स्पेसिफिक इनवॉइस वाइज देखना पड़ेगा या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन वाइज देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है. तो जिसका डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहेगा उसी के लिए आपको आईटीसी अवेलेबल होगा. ओके सर, येस. हम्म? चलो लेट अस अंडरस्टैंड विद वन क्वेश्चन. यस अथर्व, पढ़ो क्वेश्चन. Mr. Ayan is a trader in the state of Tamil Nadu, having a stock of rupees 50,000 as on appointed date. He supplied goods for rupees 60,000, and on which he has paid CGST at the rate of 14%, that is 8,400. As per Section 143 of CGST Act 2017 and rules made thereunder, he can claim credit of the extent of 60% of CGST paid, that is 5,040. अभी ऐसा क्यों 5040 का क्रेडिट क्यों दिया? बिकॉज सी, हमने अभी देखा रेट आपको चेक करना है. रेट कितना है अभी? ये एक तो ये है सीजीएसटी वाला क्वेश्चन. हाँ, तो सीजीएसटी में हम लोग पहले इसका ये देखेंगे कि रेट कितना है. 80% एंड अबव है तो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हुए बिना हम लोग कितने एक्सटेंड क्रेडिट दे सकते हैं? 60%. हाँ, एंड अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है नहीं है लेकिन रेट 18% से कम है तो हम लोग कितना क्रेडिट देते हैं? उसका सिर्फ 40% तक हम लोग उसका क्रेडिट ऑफर करते हैं. ऑलराइट. इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट यस तर सेजल. हाँ. येस. इथे एक्झाम्पल नंबर 1 मध्ये इथे 60% ऑफ सीजीएसटी पेड दिले. 18 40% असायला पाहिजे ना. हा सर, म्हणजे मला पण तोच डाऊट होता. 14 सीजीएसटी 14, एसजीएसटी 28%, असं 18% मोर झालं का? कसं आहे ते, इंडिव्हिज्युअल घ्यायचं की? जीएसटी रेट 18%. जीएसटी 18 म्हणजे 9% आहेत ना. सी, जेव्हा आपण म्हणतो जीएसटी ऍट 18% तर आयजीएसटी किती रेट होतो सांगा? 18%. करेक्ट. हा, आणि तेच समजा लोकल सप्लाय केला तर आपण काय लावणार? सीजीएसटी ऍट 18% लावू का? 9%. 9%. आणि देन एसजीएसटी एसजीएसटी 9%. ओके, सो 14, टोटल आयजीएसटी 28% असं. 28% का. येस. तर फक्त सी मध्ये असं जर इंडिव्हिज्युअल रेट लक्षात ठेवायचं तर सी साठी 9% लक्षात ठेवा. 9च्या वरती असेल तर 60, 9च्या खाली असेल तर 40. राईट. करूया स्टार्ट इलस्ट्रेशन 1. येस. या सेजल
Read question number illustration 1. Mr. X is a taxable person under GST who is a wholesaler, is having a stock worth rupees 5 lakh as on 1st July 2017. Such person has supplied goods for rupees 5 lakh 60 and on which he has paid CGST at the rate 9% and SGST at the rate 9%. How much ITC is allowed under section 140 subsection 3 of GST in the following independent cases? First, if he is in possession of duty paid document for the stock, namely BED is rupees 62,500 and VAT rupees 28,125. And second, if he is not in possession of duty paid document of stocks but has invoice evidencing purchase of goods. Alright, आता ह्याच्यात दोन केसेस आहेत. फर्स्ट केस काय आहे? He is in possession of documents. Now, when you are in possession of documents with reference to the excise duty and VAT, so in that cases, they will be taking the credit as it is. म्हणजे आता ह्याच्यात काय होणार? Basic excise duty आहे. So that is 62,500. Now, this will be carried forward as आता आपण मगाशी बघितलं की आपण जेव्हा बेनिफिट कॅरी फॉरवर्ड करतो तेव्हा ऍज काय म्हणून कॅरी फॉरवर्ड करतो? डिपेंडिंग ऑन द टॅक्स. आता वरच्या टेबलमध्ये तुम्ही बघाल तर त्याच्यात त्यांनी दिलंय की क्रेडिट ऍज काय म्हणून आपण कॅरी फॉरवर्ड करणार. सो सर्व्हिस टॅक्स, सेंट्रल एक्साइज, सीव्हीडी, एसएडी, एनसीसीडी, सेंट्रल एक्साइज या सगळ्यासाठी काय म्हणून आपण कॅरी फॉरवर्ड करणार? ऍज सीजीएसटी म्हणून आपण क्रेडिट कॅरी फॉरवर्ड करणार. पण समजा लोकल टॅक्स आहे जसं वॅट आहे तर वॅट ऍज काय म्हणून आपण कॅरी फॉरवर्ड करणार? SGST. एसजीएसटी. तर ह्याच्यात आता फर्स्ट केस मध्ये डॉक्युमेंट्स आर अवेलेबल. So documents are available म्हणजे काय ते तुम्हाला पहिले नोट लिहायला लागेल. When documents are available, 100% of credit is allowed. So 100% you can say full credit is allowed. तर BED जे आहे एक्साइज ड्युटी तर ते ऍज इट इज कॅरी फॉरवर्ड होईल ऍज CGST आणि वॅट जो आहे 28,125 that would be carried forward as SGST. All right. इथपर्यंत क्लिअर आहे? Yes, sir. हाँ सर. Okay. Now, in accordance with this, these provisions, आपल्याला क्रेडिट मिळालं जेव्हा आपण बुक्स मेंटेन ठेवले. नाव सेकंड केस आहे where he is not in possession of the documents. तेव्हा किती पर्सेंट क्रेडिट मिळणार सांगा मला? फक्त 60% 60% चा रूल वगैरे. हा. म्हणजे काय होणार? 62,500 इंटू आता 60% क्रेडिट जे अवेलेबल आहे ते कसलं आहे? 60% ऑफ सीजीएसटी म्हणजे जेवढे आपण टॅक्सेस पे करणार आहोत त्याचे आपल्याला 60% क्रेडिट मिळणार. तर आता ह्या केसमध्ये आपल्याला चेक करायचंय हाऊ मच टॅक्सेस हॅज बीन पेड. सो टॅक्सेस पेड कसं येणार? त्याने सेल कितीला केलं? सेल्स प्राइस किती आहे? 5,60,000. आता 5,60,000 वर आपण किती किती टॅक्सेस भरणार? सीजीएसटी ऍट 9% आणि एसजीएसटी ऍट 9%. तर व्हॉट दे आर सेइंग, आपण जितकी ड्युटी पे करतोय त्याचे 60% पर्यंत तुम्ही क्रेडिट घेऊ शकता. सो इफ आय एम सप्लाइंग गुड्स वर्थ रुपीज 5,60,000 तर 5,60,000 वर 9% किती येणार? 50,400.
50,400 and same goes with SGST. So 50,400 दोघांमध्ये आपल्याला क्रेडिट मिळालं, पण हे फुल into क्रेडिट घेऊ 60%. शकतो का आपण? नाही. ते No, ह्याचे फक्त 60%. आपल्याला काय करायचंय, त्याचे 60% आपल्याला क्रेडिट मिळणार आणि ह्याचं पण 60% मिळणार. ह्याचं 60% ऍज सीजीएसटी म्हणून मिळेल आणि ह्याचं 60% ऍज एसजीएसटी म्हणून क्रेडिट मिळणार. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. सो व्हॉट यू हॅव टू चेक इज आपण किती टॅक्सेस पे करतो. सो बेसिकली त्यांना काय करायचं माहितीये, फुल क्रेडिट द्यायचं नाही. हा, आणि लॉजिकली कसं होतं विचार करा. आता ऍज अन असेसिंग ऑफिसर यू जस्ट थिंक की आता डॉक्युमेंट्स अवेलेबल नाही आहेत पण तुम्हाला बेनिफिट द्यायचा आहे, तर ते लॉजिकली काय विचार करतात, मी जे काही इनपुट्स वापरतोय फॉर सप्लाईंग, सो मी बाय करून सेल केलं तर ऍटलीस्ट 60% मटेरियल तर असेल त्याचं. सो मी जेव्हा 5,60,000 ला विकतोय तर ऍटलीस्ट 60% तरी इनपुट्स असतील. आता ह्या केसमध्ये आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज द टोटल क्वांटम ऑफ इनपुट. वी नो द क्वांटम ऑफ इनपुट इज 5 लाख. बट अदरवाइज लाइक in regular cases you can't estimate what is the total quantum of inputs. सो जहां पे हमें पता नहीं है कि इनपुट्स का क्वांटम कितना है, तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर दिया, आप 60% का क्रेडिट अवेलेबल कर दो. इस तरीके से उन्होंने प्रोविजन बना. ऑलराइट. Hope everyone is clear. Yes. Yes. All right. अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के पास जाते हैं. ओके. ना अभी तक क्या था, मैं इनपुट्स यूज कर रहा था फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई. दैट मींस इनपुट्स यूज्ड फॉर सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स. But sometimes I am providing both taxable and exempted goods. तो वो केस में हम लोगों को कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, तो उसके लिए पॉइंट नंबर डी हमें स्टडी करना पड़ेगा. हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर डी. अमोक रीड करो पॉइंट नंबर डी. Yes, sir. Credit in respect of exempted and non-exempted goods or provisions of exempted as well as non-exempted services under section 140 subsection 4. Registered person is liable to tax under this act on all his goods and services shall be entitled to take in his electronic credit ledger A. The amount of Senvat credit carried forward in a return furnished under the existing law by him in accordance with the provisions of section 140 subsection 1 and the amount of Senvat credit of eligible duties in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished goods or FG held in stock on as on 1st July 2017 relating to such exempted goods or services in accordance with the provisions of section 140 subsection 3. In हाँ. other words, हाँ पढ़ो. in other words, input tax credit of Senvat or VAT in respect of input, semi-finished and finished goods in stock attributable to exempted goods or services which are now taxable can also be taken in the same manner. मतलब ये क्रेडिट कैसे लेना है, तो आपको जहां पे टैक्सेबल, टोटली टैक्सेबल या टोटली एग्जम्प्टेड के लिए है, तो हम लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन टैक्सेबल और बेस्ड ऑन नॉन टैक्सेबल. लेकिन जहां पे मैं दोनों सप्लाई कर रहा हूँ, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड, तो वहां पे दिक्कत आती है कि एग्जैक्टली कैसे करना. तो वहां पे आपको जैसे हमने पहले देखा था, प्रोपोर्शनेटली आपको वर्किंग करना पड़ेगा. प्रोपोर्शनेट आपको एग्जाम मतलब प्रोपोर्शनेट आपको आईटीसी मिलेगा एंड प्रोपोर्शनेट आपका आईटीसी कैंसल आउट हो जाएगा. ऑलराइट. तो ये एग्जैक्टली किस तरीके से करना है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं.
एक बार इलस्ट्रेशन टू ध्यान से पढ़ लो। Read question number 2.
सर मुझे आवाज नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी। सर ने कुछ बोला ही नहीं रे। नहीं नहीं, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू रीड द क्वेश्चन, तब तक मैं ये लिख के रख रहा। ऑलराइट, क्वेश्चन पढ़ के सर हो बताऊँ? गया। हाँ हाँ सर। हाँ। अभी देखो यहाँ पे इसके लिए मैंने ये लिख के रखा, जस्ट टू लेट यू नो द समरी ऑफ दिस। अभी देखो यहाँ पे हम लोग दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ए एंड बी। अभी क्या हो रहा है, देखो प्रोडक्ट ए क्लियर्ड ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, मतलब अर्लियर टैक्स रेजिम में आप लोगों को जो ए प्रोडक्ट था उसके ऊपर ड्यूटी था, एंड बी प्रोडक्ट वाज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी। दैट मीन जब भी हम लोग बी सेल कर रहे थे तभी उसके ऊपर इनपुट टैक्स, मतलब तभी उसके ऊपर वो एग्जम्प्टेड ही था। तो अर्लियर टैक्स रेजिम में उसको एग्जम्प्टेड कैटेगरी में डाला था, तो नेचुरली आपका अर्लियर टैक्स रेजिम में क्रेडिट चला जाता। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में क्या हुआ, देखो लास्ट ले, विथ इफेक्ट फ्रॉम, सॉरी, 1st July 2017, product A as well as product B are taxable at the rate of 6%। तो अगर वो टैक्सेबल है, नेचुरली आपको क्या मिलना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, अभी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे अवेलेबल होगा, तो इसके लिए हमें दो कैटेगरी देखना है। एक तो 141, हाँ, एंड 144। तो इस दोनों में फर्क क्या है, 141 मतलब क्या, कि जहां पे स्पेसिफिक क्रेडिट्स अवेलेबल है, तो आपको देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी, मतलब सॉरी टैक्सेबल कैटेगरी जो था, मतलब प्रोडक्ट ए था वो कंप्लीटली टैक्सेबल कैटेगरी में था, बराबर। तो वो आ जाएगा आपका 141 में, मतलब यहाँ पे आपको सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 यूज करना पड़ेगा। एंड सेकेंड केस में आपको सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 यूज करना पड़ेगा, एंड ठीक है। अकॉर्डिंगली यू कैन हाँ फोर। कंसिडर, हाँ, अकॉर्डिंगली यू कैन कंसिडर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 140 ए क्यों, सॉरी 141 क्यों, बिकॉज वो पहले भी टैक्सेबल कैटेगरी में था, अभी भी है। हाँ, बी में क्या हुआ, पहले एग्जम्प्टेड था अभी टैक्सेबल में आ गया, लेकिन उसका क्रेडिट तो दोनों का मिलेगा। देखो क्रेडिट लेते वक्त तो दोनों का सिमिलर तरीके से ही होगा, हाँ? लेकिन सेक्शन नंबर बदल गया, बिकॉज नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज, बिकॉज 141 में क्या है, दोनों टाइम टैक्सेबल था, 144 में पहले नॉन टैक्सेबल है, अभी टैक्सेबल। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ए के लिए, हाँ, आईटीसी कितना मिलेगा, मतलब इन शॉर्ट ए प्रोडक्ट के लिए 140 ए के अंडर कितना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने को मिलेगा। अ, देखो अभी ए में जो कॉमन इनपुट्स हैं, हाँ, एक तो स्पेसिफिक इनपुट्स एंड दूसरा कॉमन इनपुट्स। अभी जो स्पेसिफिक यूज था वो कौन कितना वाला है, 25,000 वाला। एंड सेकेंड, दूसरा है कॉमन इनपुट्स यूज्ड। अभी जहाँ पे कॉमन इनपुट्स यूज्ड है वहां पे क्रेडिट भी प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। नाउ 37,500 है, उसमें से प्रपोर्शन आपको करना पड़ेगा। अब ये प्रपोर्शन हम लोग किस तरीके से करेंगे, बेस्ड ऑन हाउ मच इज द टोटल स्टॉक अवेलेबल विथ यू। तो आपके पास टोटल स्टॉक कितना अवेलेबल है, 15 लाख का स्टॉक अवेलेबल है। तो आपको उस प्रपोर्शन में करना पड़ेगा, इंटू 10 lakhs अपॉन 15 lakhs।
सो 37,500 इंटू 10/15 तो आ जाएगा 25,000। सो टोटल क्रेडिट ए के लिए कितना मिलेगा? 50,000। ऑलराइट। एंड नेक्स्ट अभी हमें देखना है प्रोडक्ट बी के लिए कितना आईटीसी मिलेगा। अभी कैलकुलेशन करते वक्त तो सिमिलर मैनर में ही आएगा, लेकिन सिर्फ क्या फर्क होगा, बी के लिए हम लोग बी का फिगर्स यूज करेंगे 12,500। एंड अभी क्या होगा, 37,500 में से 10 का हमने ए के लिए लिया, तो बी के लिए कितने का आएगा यहाँ पे? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ए के लिए क्या लिया, 10/15 lakhs लिया, बराबर? इधर 5 लाख अपन 15 लाख ले लेंगे। यस, तो यहाँ पे 5/15 करेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो टोटल आईटीसी कितना मिलेगा? इन शॉर्ट मिला दोनों का ही, लेकिन सिर्फ आपको अलग अलग बताना पड़ेगा, दैट्स ऑल। सो टोटल आईटीसी यू आर एलिजिबल फॉर इज 75,000। I hope this provision is clear. Yes, sir. Yes. हाँ सर। नहीं सर, मेरे को कॉमन इनपुट यूज फॉर ए एंड बी वो नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये कॉमन समझा, ये 37,500। हाँ, ये 37,500 मेरे को समझा कि वो जो हाँ 3 लाख का है वो क्या हो रहा है उसके साथ। देखो, कॉमन इनपुट्स है 3 लाख का, जिसके ऊपर मैंने टैक्सेस पे किया 37,500। अभी वो इनपुट्स की बात कर, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, फॉर एग्जांपल पकड़ो, मैं बुक्स बना रहा हूँ, हाँ, ए ए वॉज, नहीं वो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ए एंड बी, हाँ, तो उसके लिए जो सर्टन मटेरियल है वो कॉमन मटेरियल, तो कॉमन मटेरियल जो मैंने यूज किया वो 3 लाख का है। एंड जो स्पेसिफिक मटेरियल है वो 2 एंड 1 लाख का है। सो टोटल मिलके मैंने 6 लाख का मटेरियल यूज किया। अभी जो कॉमन मटेरियल था उसके ऊपर 37,500 का मैंने टैक्सेस भरा है। अभी क्वेश्चन है वो 37,500 का क्रेडिट हम लोग ए एंड बी में कैसे एलोकेट करें। तो बेस्ड ऑन हाउ मच इज द क्वांटम ऑफ स्टॉक यू हैव, अभी ए एंड बी का कितना स्टॉक दिया आपको यहाँ पे दिया है, देखो एज ऑन 1/7/2017, ये वाला लाइन। As on 1/7/17, finished product A was worth 10 lakh and product B was worth 5 lakh in the stock. करेक्ट? तो ये जो 10 लाख एंड 5 लाख है, वो हमें क्या करना है, ये क्रेडिट को 37,500 को ये रेशियो में डिवाइड करना है, 10:5, दैट इज 2:1 में हम लोगों ने बेसिकली उसको डिवाइड कर। तो इसके लिए यहाँ पे 10/15 आया एंड यहाँ पे 5/15 आया। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके। अभी समझा? ओके, सर एनी इट्स सिमिलर ते दोन्ही मध्ये ना टू अमाऊंट सेम आले ना म्हणून थोडं कन्फ्युजन होत आहे, 25 आणि ते सेमच ओके ओके मीन्स ओके आपण कॉमन का इनपुट्स आणि so it's like ओके C2 into exempted upon total turnover, just like की इथे exempted नाही, दोन्ही करायचे फक्त. आयटीसी ला हाँ जसं कॉमन आयटीसी घेते तो तसंच आहे. ठीक है। एक काम कर, ये बेसिक तो आपको समझ में आया कैसे करना है? हाँ 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 हाँ, सर. आता मैं एक काम करूँ, इसमें हम लोग फिगर चेंज कर देते हैं, आप मुझे बताते जाओ, फिर आपको वो सेम सेम आ रहा है, इसके लिए फिर कंफ्यूजन आपको हो रहा है, तो वो कंफ्यूजन नहीं हो।
जरा लिहून घेऊ का पहिले? हा हे हवं तर लिहून म्हणजे आन्सर आहे पण ते त्याच्यात ते असं असं एवढं बायफिकेट नाही केलं त्याच्यात डायरेक्ट आन्सर हवं ते लिहून घे. आणि लिहून झालं की मला सांगा मग आपण विथ डिफरंट फिगर्स विल डू दिस सम सो मग कन्फ्युजन नाही. अभी देखो इनपुट्स यूज्ड फॉर ए कितना है 40,000 तो उसका हम लोग डायरेक्टली क्रेडिट ले लेंगे वो तो समझा. Yes, sir. हम्म? अभी जो कॉमन है कॉमन में कितना आईटीसी है 45,000. अब ये 45,000 को हमें स्प्लिट करना है बेस्ड ऑन द स्टॉक अवेलेबल. स्टॉक कितना कितना अवेलेबल है आपके पास 12 लाख एंड 8 लाख. देखो इनपुट का क्वांटम इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ये दोनों में कितने कितने एक्सटेंट तक है. तो ये अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग उसको बेस्ड ऑन हाउ मच क्वांटम ऑफ स्टॉक यू हैव वी आर गोइंग टू स्प्लिट इट. तो ये स्प्लिट कैसे होगा किस तरीके से होगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे उसको बेस्ड ऑन हाउ मच क्वांटम ऑफ स्टॉक यू हैव. तो क्वांटम कितना कितना है 12 लाख एंड 8 लाख तो इसको 12/20 में हम लोग बाइफिकेट करेंगे. सो इट इज 45,000 इंटू 12/20 सो तो दैट कम्स टोटल 20. ड्यूटी में तो 55 आएगा ना, 45 क्यों आ रहे ये 45 कॉमन है में? अरे वो कॉमन है, कॉमन वो अलग है। कॉमन. ये ए और बी का 40,000 15,000 इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल हुआ ना 40 एंड 15. कॉमन देखो नीचे है ये ब्लू में हाईलाइट किया मैं उसको भी येलो कर लिखा. हाँ सर। तो ये जो कॉमन है उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कैलकुलेशन एंड उसको कौन से रेशियो में डिवाइड किया तो बेस्ड ऑन हाउ मच क्वांटम ऑफ स्टॉक यू हैव हम लोगों ने उसको बाइफिकेट किया बिकॉज ये इनपुट कितना भी हो सकता है ना फाइनल आउटपुट में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ मच स्टॉक यू हैव. सो बेस्ड ऑन द स्टॉक अवेलेबल हम लोग क्या करेंगे उसमें सेग्रीगेट करेंगे प्रपोर्शन 12:8 प्रपोर्शन. ऑलराइट एंड सेकंड में कितना आएगा यहाँ पे इंटू 8/20 आएगा. इनपुट्स यूज्ड फॉर बी इज 15,000 एंड कॉमन में आएगा इंटू 8/20 सो दैट इज 33,000. सो टोटल आईटीसी देखो टोटल कितना होना चाहिए तीनों का जो टोटल है उतना आपको टोटल क्रेडिट मिलना चाहिए जो है 1 लाख.
तो उसमें ए के लिए कितना मिला 67 एंड बी के लिए कितना मिला 33,000. आर यू गेटिंग इट? Yes. ऋतिक समझा अभी? हाँ सर। वंस यू कंप्लीट दिस फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. Done. हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। Okay, quickly refer this chart, and then you tell me how this provision is been considered. It's very simple. Just एक बार chart देख लो, then we'll discuss. This is specifically for goods in transit. उसके लिए ये provision है कि जो गुड्स इन ट्रांजिट है, हाँ, तो उनका क्या होगा, उनको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि जिसने ट्रांजिट शुरू कर दिया पहले एंड बाद में आपको मिला, तो हाउ वी शुड डील विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो एक बार चेक कर लो चार्ट.
पढ़ लिया? हाँ सर। यस, हाँ। अभी इसमें आईटीसी के लिए आपको क्या देखना है, इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज ऑन विच ड्यूटी और सर्विस टैक्स इज पेड प्रायर टू 1 जुलाई एंड रिसीव्ड आफ्टर 1 जुलाई। अभी देखो ऑलरेडी मिल ही गया प्रोडक्ट, तो इन ट्रांजिट होगा ही नहीं, तो नेचुरली वो ड्यूटी पेड प्रायर है, लेकिन आप 1/7 के बाद उसको रिसीव कर। हाँ, if the answer to that is no, then Senvat credit is allowed as ITC as per provisions of 141. Hmm? मतलब पहले अगर मिल गया, इन शॉर्ट 25 जुलाई, 25 जून को सर्विस टैक्स पे किया एंड 30 जून को आपको मिल गया, तो यू शुड बी एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। करेक्ट? सो you have to consider credit is available only when the goods are means the question will arise only when the goods are received afterwards. So when the goods are received afterwards, then inputs are received within 30 days from 1st July. That means 30th July तक आपको रिसीव हो गया तो आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन 30th जुलाई के बाद अगर आपको गुड्स मिला, हाँ, देन क्रेडिट इज नॉट अलाउड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, जो इन ट्रांजिट है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, प्रोवाइडेड आपको 30 दिन के अंदर अंदर गुड्स मिल गया तो। हम्म? अभी लेट्स चेक इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऋतिक पढ़ो इलस्ट्रेशन 3। Mr. X has cleared goods from his factory on 20th May 2017 for sale to Mr. Y for rupees 5 lakh. Effective rate of excise duty at 12.5%. However, ED excise duty rupees 62,500 has been paid on 6th June 2017. The consignment received by Mr. Y on 5th July 2017. Find the following. First, Mr. Y is eligible for ITC. If so, what amount? Second, the time limit within which receipt of input should record in the books of account of Mr. Y. Third, Mr. Y recorded receipt of input in the books of account on 15th August 2017. If so, can be avail the ITC. अभी यहाँ पे फर्स्ट केस जो है हमें डिस्कस करना है, फर्स्ट केस क्या है, इज वाई एलिजिबल फॉर आईटीसी। तो रूल वाइज गुड्स पहले निकल गया लेकिन आपको मिला कभी 5 जुलाई को मिल गया, दैट मीन्स इट इज टैक्सेस आर पेड बिफोर एंड गुड्स आर रिसीव लेटर, तो इसमें क्रेडिट मिलेगा बिकॉज इट इज रिसीव्ड विद इन 30 days। ऑलराइट, तो वाई को पूरा क्रेडिट मिलेगा, जितना एक्साइज ड्यूटी भरा है 62,500, ही इज एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। सेकेंडली, व्हाट इज द टाइम लिमिट? नाउ टाइम लिमिट हमने देखा कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको गुड्स क्या होना चाहिए, आपके पास आ जाना चाहिए। तो 30 दिन के अंदर अंदर आना है मींस 1 जुलाई के बाद 30 days, मतलब 30 जुलाई तक गुड्स आपके पास पहुंच जाना चाहिए। तो मिल गया तो क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। अभी जो सी पॉइंट दिया है, इफ वाई रिकॉर्डेड द रिसीट ऑफ इनपुट्स इन द बुक्स ऑन 15th August, 15th August को रिकॉर्ड कर दिया तो नेचुरली क्या होगा, 15th August मतलब 30 days हो गया। अगर 30 days हो गया तो फिर आपको क्रेडिट क्या होगा आपका, उतने एक्सटेंड तक लैप्स। लैप्स हो जाए, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट मिल सकता है लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर मतलब कमिश्नर को एक्सटेंशन के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, एंड अगर कमिश्नर ने परमिशन दिया तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज उसका बेनिफिट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाए।
All right. ठीक है। अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है जहां पे मल्टीपल आपको एस्पेक्ट्स दिए हैं कि वाई ने एक्स ने गुड्स इंपोर्ट कर दिया तो किस किस का क्रेडिट मिलेगा। हाँ, बट बिफोर गोइंग टू दैट, लास्ट सम इज क्लियर, लास्ट इलस्ट्रेशन, लास्ट प्रोविजन इज क्लियर इन ट्रांजिट वाला। हाँ सर। Yes, sir. यस। हाँ, अभी नेक्स्ट है एक्स इंपोर्टेड गुड्स। यस, अथर्व पढ़ो। Illustration number 4. Mr. X imported goods from USA on 20th June 2017 for rupees 5 lakh. Custom duties like BCD 50,000, CVD 68,750, cess 3,563, and special CVD rupees 24,893. Also paid on 29th June 2017. The consignment received by Mr. X into his factory on 20th July 2017. The services of customs broker and CNF are used for imported inputs. Service tax rupees 10,000, Swachh Bharat cess of rupees 500 and Krishi Kalyan cess rupees 500 has been paid on 30th June 2017 along with value of services to the provider of services. Mr. X eligible for ITC? If so, what amount? अभी यहाँ पे आपका अलग अलग क्रेडिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीसीडी का है, हमने देखा था बीसीडी का क्रेडिट मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा सर, नहीं पहले भी मिलेगा। नहीं मिलता था। यस, लेकिन सीवीडी का आपको क्रेडिट मिलेगा, स्पेशल सीवीडी का क्रेडिट मिलेगा। अभी देखो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी 68,750 है, यू आर एलिजिबल फॉर इट्स क्रेडिट। सेस हमने देखा था, सेस का क्रेडिट नहीं मिलता। स्पेशल सीवीडी अगेन क्रेडिट इज अवेलेबल। तो इन शॉर्ट सीवीडी का क्रेडिट मिला, स्पेशल सीवीडी का क्रेडिट मिला। उसके अलावा नीचे दिया आपको सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन स्वच्छ भारत सेस या कृषि कल्याण सेस है, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स तीन का आपको क्रेडिट मिलेगा, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी एंड सर्विस टैक्स। एंड सिंस ऑल ऑफ देम आर ऑन नेशनल लेवल, मतलब सेंट्रल लेवल पे है, इसके लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा एज सीजीएसटी। लोकल टैक्सेस रहेगा तो एसजीएसटी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? सीजीएसटी आएगा। ऑल राइट। सर कंपेन्सेशन सेस पण नाही ना मिळणार? नाही, ह्याच्यात कुठे दिलंय कॉम्पेन्सेशन? हा तेच म्हणजे यू आर आस्किंग इन जनरल? इन पण जनरल हा हा पण कॉम्पेन्सेशन सेस नव्हताच पूर्वी। तेच फक्त आउट तो 5 इयर्स साठी होता ना सर, 2017 to 22 फॉर द बेनिफिट. ना ना राजा, दॅट इज इन न्यू रेजिम ना, आपण आता डिस्कस काय ओके, करतो? ओल्ड रेंज. हा, ओके ओके या. ओल्ड रेजिम मध्ये टॅक्स नव्हताच ना तो। हम्म, हम्म, ठीक है, क्लियर है। येस सर. हा ऍक्च्युली हे सगळं झाल्यामुळे कंपेन्सेशनच नवीन सुरू केला. हा राईट. हम्म, हम्म, स्टेटला लॉस होऊ नये म्हणून. येस येस गॉट इट. यस। हम्म, okay. Next is those taxpayers tax paid under existing law under composition scheme.
Now question is those who were covered under composition scheme but now are getting registered as a regular taxable person, तो उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? So those taxpayers who paid tax at fixed rate or in lieu of the tax payable under existing law, but working under the normal tax regime under the GST can claim, now this is important, can claim the input tax credit of stock, semi-finished goods, finished goods on the appointed date subject to following conditions. Such input stock used for taxable supply under this act. Registered person is not covered under the composition and the new act. Next is registered person is eligible for ITC and mainly documents are available. तो अगर ये सब है and lastly invoices are not 12 months older. So अगर ये सभी condition fulfill हो गया and आप composition earlier regime में थे and non composition अभी के scheme में हो, तो you are eligible for the input tax credit under the new mechanism. Okay, next is credit on input service by an input service distributor under section 140 subsection 7. That means अभी जो न्यू regime में आपको याद है न्यू regime में there is a provision for what you say input service distribution. हमने देखा था कि head office credit लेगा and फिर वो credit हम लोग क्या करेंगे distribute करेंगे amongst its branches. तो वैसे ही प्रोविजन सिमिलर प्रोविजंस वेयर देयर इन अर्लियर मैकेनिज्म मींस सर्विस टैक्स में सेम प्रोविजंस था एंड व्हाट दे सेड इन सर्विस टैक्स वाज बिकॉज you are having the head office then that benefit is transferred to the branches. तो similar provision जीएसटी में भी है. तो ऐसा हुआ कि अगर किसी हेड ऑफिस ने उसका सर्विस टैक्स ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लेकिन अभी वो न्यू रेजिम में आ गया, तो न्यू रेजिम में आने के बाद क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो व्हाट आई एम सेइंग इज वो क्रेडिट भी हम लोग उसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जैसे पहले हम लोगों ने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया था. तो अगर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट है तो हम लोग उसको ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ये जस्ट उन्होंने जस्ट एग्जांपल दिया है इधर कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो बेस्ड ऑन द टर्नओवर जैसे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लाई के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे देखो आपके पास 45,000 का सीजीएसटी एंड आप दो अलग अलग लोकेशन में सप्लाई कर रहे हो 2.5 लाख एंड 1.5 लाख. हाँ, तो 2.5 लाख एंड 1.5 लाख मतलब लगभग रेशो आया 5:3. तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास क्रेडिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इन द सेम प्रोपोर्शन. हमने रूल देखा था कि याद है आपको रूल कि क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ टर्नओवर या फिर प्रोपोर्शन ऑफ द सेल्स कितना हो रहा है हर एक लोकेशन में, तो उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं. Then next provision, ITC in case of centralized registration under service tax. हाँ, अभी आपको ये प्रोविजन पता नहीं रहेगा ये क्या है तो हम लोग वो एक बार देख लेते हैं. देखो सर्विस टैक्स में कैसे था अभी आप अगर आपको मतलब लाइक यू नो कि जीएसटी में रूल कैसे है कि मेरा चार अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन, चार अलग अलग स्टेट में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, चारों स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. करेक्ट, डू यू एग्री? हाँ हाँ, तो अगर चारों स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है तो मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि मैं वो क्रेडिट को सॉरी मतलब मैं एक ही रजिस्ट्रेशन लूं. लेकिन सर्विस टैक्स में इट वाज ऑप्शन वाज गिवन टू द एसएसी दैट अगर मैं चार अलग अलग स्टेट में ऑपरेट कर रहा हूँ तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आई कैन गेट रजिस्ट्रेशन ओनली वन.
सबके लिए मैं कॉमन सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सर्टन कंडीशंस था कि मेरा कॉमन बिलिंग होना चाहिए, एक ही जगह से मेरा टोटल इनवॉइसेस निकलना चाहिए, या फिर जो भी इनवॉइसेस निकलेगा वो सीरियल नंबर्ड होना चाहिए। तो वो अगर कंडीशन है तो मैं सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले सकता था ओल्ड रेजिम, मतलब सर्विस टैक्स, जो कि नए में अलाउड नहीं। अभी जो एसएससी ने सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन पहले लिया था, हाँ, अभी जैसे वो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया उसका सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तभी एक रजिस्ट्रेशन था, अभी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको वो क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हाँ। एंड वो क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो इट इज बेस्ड ऑन हाउ मच इज द turnover, you can say, in each of those locations या each of those areas। तो उस हिसाब से आप लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको वो प्रोपोर्शन में ही करना है, बिकॉज सी देर आर सो मेनी फैक्टर्स फॉर ऑपरेटिंग ब्रांच, करेक्ट। कि ब्रांच में सिर्फ सेल्स या सिर्फ स्टॉक ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बार क्या होता है, ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर्स भी होता है, या फिर एचओ ब्रांच में ट्रांजैक्शन होता है, ब्रांच एचओ को गुड्स ट्रांसफर करता है। उसके लिए दे हैव दे हैव पुट दीज कंडीशंस कि आप वॉलेंटरी उसको क्या कर सकते हो, उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, हाँ। लेकिन ये सब आपको कितने टाइम में करना है, दिस हैज टू बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। इसको अंडरलाइन करके रखो, फोर्थ लाइन। In the return filed under the existing law, if the original or revised return under the existing law has been filed within 3 months, such credit can be transferred to any registered person having same PAN for which centralized registration was obtained। तो किसी भी पार्टी के लिए जहां पे मैंने सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लिया था, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिसेंट्रलाइज कर सकता हूँ अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं, प्रोविजन समझा सबको? हाँ सर। यस, हाँ। अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो हम पढ़ो इलस्ट्रेशन 5। Yes, sir. Messrs. X Academy, being provider of taxable services, has obtained centralized registration in Chennai for its offices in Hyderabad and Cochin under Finance Act 1994. The Chennai office has the balance credit of rupees 5 lakhs as on 30th of June 2017. Can Messrs. X Academy distribute the credit to Hyderabad and Cochin? If so, in which ratio? Explain. वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्या? तो कर सकता है। व्हाई? बिकॉज इट हैड सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन। तो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं दोनों में, बेस्ड ऑन द लोकेशन। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करके वो इंटीमेट करना पड़ेगा। एंड इज देयर एनी रेशो, मैंडेटरी रेशो फॉर दिस, कि जिस रेशो में आपको डिवाइड करना है, ऐसा कुछ लिखा है क्या, रेशो कितना होना चाहिए? So there is no No compulsion sir. about No ratio. ratio. You can distribute according to your calculation. Only thing is total of inputs, मतलब total of credit जो carry forward था and जो आपने distribute किया, वो amount दोनों का same होना चाहिए। Okay, now next point is रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। आपको याद है जीएसटी में कितने, मतलब पेमेंट नहीं किया तो कितने टाइम में रिवर्सल हो जाता है? 180 days. 180 days. 180 डेज, हाँ। सर्विस टैक्स में सिमिलर प्रोविजन था, लेकिन वहां पे क्या था, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड, हाँ। 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस द क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर। तो वहां पे 3 महीने का टाइम था जिसके अंदर अंदर आपको ये सब कंप्लीट करना चाहिए। नहीं किया तो आपका क्रेडिट कैंसिल हो। अभी उन्होंने क्या कर दिया, 6 महीने का 180 डेज का क्रेडिट पीरियड कर दिया। लेकिन जो सर्विस टैक्स में प्रोविजन था, तो मान लो किसी का 1 जून को इनवॉइस निकला, तो 1 जून 17 को इनवॉइस है, तो नेचुरली 1 जुलाई तक 30, मतलब
3 मंथ्स तो कंप्लीट नहीं हुआ, 3 महीना बाद में कंप्लीट होगा। तो अगर 3 महीना बाद में कंप्लीट हो रहा है तो क्वेश्चन आता है कि वो क्रेडिट का क्या करेंगे। हाँ, तो अगर 3 महीना बाद में उसने पेमेंट नहीं किया तो जब भी वो पे करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसका क्रेडिट ले लेना है। तो ऐसा भी केसेस रहेगा कि सपोज जैन में मैंने किसी पार्टी को बिल रेज किया, 3 महीने में पेमेंट नहीं आया, तो उसका क्रेडिट कैंसिल आउट होगा। लेकिन उसने अगस्त में जाके उसको पेमेंट कर दिया जो न्यू रेजिम में आ गया, मतलब जब भी जीएसटी में आया, तो अभी प्रॉब्लम आता है कि सर्विस टैक्स में तो मुझे क्रेडिट मिला ही नहीं था, तो वो क्रेडिट मैं कैरी फॉरवर्ड कैसे करूं या उसका बेनिफिट कैसे लूं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको जैसे ही आपने उसको पेमेंट कर दिया तो आपको ये डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है एंड उसका क्रेडिट क्लेम करना है। लेकिन ये कब तक होना चाहिए, दैट हैज टू हैपन विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। इसको अंडरलाइन करके रखो, फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक पेमेंट आया तो ही हम लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज वी कैनॉट टेक द बेनिफिट ऑफ द सेम। ऑलराइट, ओके। And lastly, where any goods or capital goods belonging to the principal are lying at the premises of the agent on the appointed day. Now, this provision is specifically applicable for SGST. In such cases, agent shall be entitled to take credit subject to following condition. तो agent को credit मिलेगा, लेकिन basic condition क्या रहेगा, agent registered person होना चाहिए। Secondly, both principal and agent declare the details of the stock, वो स्टॉक का डिटेल्स डिक्लेयर करेंगे। इनवॉइस इज नॉट ओल्डर देन 12 मंथ्स, ये तो कॉमन कंडीशन है कि 12 महीने के पहले का इनवॉइस नहीं होना चाहिए। देन प्रिंसिपल हैज आइदर रिवर्स्ड और नॉट बीन अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो प्रिंसिपल ने क्रेडिट नहीं लिया है, लेकिन वो क्रेडिट फिर कौन लेगा, एजेंट। तो उस हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये क्रेडिट एजेंट को मिल जाए। ऑलराइट, hopefully transitional provisions are clear. यस सर। Yes, Yes, sir. सर इसमें थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब प्रैक्टिकल का तो ये समझा मुझे, हम्म। लेकिन थ्योरी में अगर कुछ आए तो क्या आ सकता है इम्पोर्टेंट एकदम, या तो फिर लास्ट इसमें टाइम क्या पूछा था? ये केस स्टडी मतलब प्रैक्टिकल पूछा था, बट ये केस स्टडी बेस्ड में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ये था ना कि ये वाला क्वेश्चन, ये कैसे केस स्टडी वाला क्वेश्चन है कि सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन था, क्रेडिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। या फिर मेरे पास मैं ओल्ड रेजिम में था एंड मतलब एग्जम्प्टेड गुड्स था एंड मैं टैक्सेबल में आ गया, तो जब भी हम लोगों ने देखा कि आपको इनवॉइसेस है या नहीं है, तो इनवॉइस नहीं है मेरे पास तो 60% क्रेडिट मिलता है, मैंने 100% ले लिया। तो वेदर एक्शन ऑफ द एसएससी इज करेक्ट और इनकरेक्ट। हाँ, तो वैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते कि जहां पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको एक स्पेसिफिक बेनिफिट न्यू में मतलब जीएसटी के अंदर है या नहीं। अच्छा, ओके। हम्म? तो बेसिक आपने सिर्फ इतना भी करके रखा ना कि हर एक सेक्शन में याद रखा या नोट डाउन कर लिया कि कितना कितना हर एक का बेनिफिट्स है, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। ओके सर। ऑलराइट, एंड आप 1-2 दिन में रिवाइज कर दोगे ना तो आपको वापस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये चैप्टर। ऑलराइट, सो लेट्स डू वन थिंग, एक छोटा